Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I'm taking your lecture number 33 for the subject, which is the manufacturing technology. And in the previous series of the lecture, we start our discussions on the foundry technologies, and uh, to be very specifically, if I want to discuss that topic in the previous series of the lectures, we are try to focus on the patent making process and what are the functions of the patents and how the critical things which is to be happens at the time of the selections of the materials for the patents. So our so far discussions was uh, stop at that point for the material selections for the patents, and for this lecture we will start our discussions with focusing on the different material which is to be used for the patent makings, and let's start the discussions over that topic. So the materials for the making, uh, before I start my discussions with the patent making, our major discussions was for the today's lecture was focused on the different types of the allowances which is provided to the patents, right? So let's start. The material which is used for the patent making is that a patent is maybe constructed out of the following materials. आपके पास जो भी अवेलेबल ऑप्शंस है उसमें से कुछ मटेरियल्स जो है वो यहाँ पे चूज़ किए गए हैं. With using that materials we are manufacturing the patents for the patent making. The first options which is the wood, second which will be metal, third will be will be the plastic, then the plaster which is we can say as a plaster of Paris POP, and the fifth option which is the wax. With using this much material which will be available for the patents, we are using that material for the patent making process. So let's start the first our discussions with the wood. A wood is the most common material for used for the patent making of the sand casting. The most common material for a making of the patent is wood for a sand casting in the wood, right? It has some advantages like it is an inexpensive materials. It is easily available in the large quantity. अगर आपको वुड जो है ना, वुड से अगर आपको पेटेंट बनानी है तो जो ईजिली वो अवेलेबल रहता है, राइट? इतना जो है वो महंगा मटेरियल नहीं है जो आपको परचेस करने में कुछ दिक्कत आए, राइट? आप इजीली उसको परचेस कर सकते हो. देन इट इज़ ईजी टू मशीन्स. आपको उसको अलग अलग शेप के अंदर फॉर्म करना है तो आप उसको ईजिली जो है फॉर्म कर सकते हैं. It is as to machines and to shapes to the different configurations and the different forms. Now it is as too easy to join and acquire a complex and the large patent shapes. आपको कुछ complex shapes बनाना है, कुछ आपको एक बड़ा सा large patent बनाना है, तो इसमें से आप इसको ईज़िली ज्वाइन करके आप 2 या 3 पार्ट में आप ज्वाइन करके इसमें से एक बड़ा सा पेटर्न जो है वो आप बना सकते हो. इट हैज़ ईजी टू ऑब्टेन अ गुड सरफेस फिनिश. आप इसमें से जो है बहुत अच्छा सरफेस फिनिश जो है वो आप मेंटेन या फिर डेवलप कर सकते हो विथ यूजिंग अ वुड पेटर्न्स. A wooden patents is can be preserved for a quite long time with the help of the suitable wood preservatives, right? It has a certain kind of the limitations in the form of the wooden patents are susceptible to the shrinkage or a swelling. तो इसमें से सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो वुडन पैटर्न के एज अ लिमिटेशंस जो है वो डेवलप्ड होती है, विच इज़ इट इज़ ए सस्पेक्टेबल्स टू दी श्रिंकेज. ये वुड जो है वो जो वुड वाला मटेरियल रहता है वो ईजीली जो है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है कुछ टाइम के बाद, और स्वेलिंग उसके अंदर हो जाता है. तो ये एक दिक्कत जो है वो वुडन पैटर्न के साथ नॉर्मली जो है वो रहती है. दे पोजेस अ पुअर वियर रेजिस्टेंस.
इसका जो है वो वेयर रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी पुअर वेयर रेजिस्टेंस जो है वो होता है, और दे आर abradates and easily, and we can take sand actions. So नेक्स्ट विच इज़ दे एब्सॉर्ब द मॉइस्चर्स। ये जो वुडन पैटर्न्स रहती है वो जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर्स रहता है वो मॉइस्चर्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड कंसिक्यूटिवली गेट अ डिफॉर्म्स एंड अ चेंज शेप्स एंड दी साइज। जैसे ही वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है उसके बाद उसके शेप्स, साइज, सब कुछ जो है वो धीरे धीरे जो है वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं। दे कैन नॉट विदस्टैंड रफ हैंडलिंग। आप उसको अगर रफली जो है वो हैंडल कर रहे हैं तो वो ज़्यादा वक्त तक जो है वो एक तरीके का फोर्स लोड जो है वो उस कंडीशंस के अंदर विदस्टैंड नहीं कर पाएंगे। दे आर वीक एज कम्पेयर टू दी मेटल पैटर्न्स। अगर मेटल के पैटर्न के साथ अगर हम लोग कंपेरिजन्स करें तो मेटल के पैटर्न के कंपेरिजन्स में दे आर क्वाइट अ वीकर पैटर्न्स, राइट। कंपेरेटिवली जो है वो वीक पैटर्न्स जो है वो रहती है। नेक्स्ट विल बी दी मेटल पैटर्न। अ मेटल पैटर्न्स आर एम्प्लॉयड विथ वेयर अ लार्ज number of casting have to be produced from a same patterns. So a metal patterns are employed where a large number of the casting have to be produced from the same pattern. जब एक ही पैटर्न को यूज़ करके लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ के अंदर आपको पीसीज जो है वो या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करना है, तब metal pattern is a quite viable options for yours. A metal patterns are cast from wooden patterns. इसके रफ रेप्लिका के फॉर्म में अगर आपको पहले एज लाइक यू हैव टू जनरेट दी डेवलप दी मेटल पैटर्न, उसके रफ रेप्लिका के फॉर्म में जो है वो आप जो है वो मेटल पैटर्न जो है वो बनाते हैं, राइट। वुड पैटर्न में से ही इसका रेप्लिका जनरेट करके मेटल पैटर्न जो है वो फॉर्म किया जाता है। डिफरेंट मेटल्स एंड अलॉय यूज फॉर मेकिंग द पैटर्न्स आर द एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम अलॉय, स्टील, कास्ट आयरन, ब्रास, वाइट मेटल्स, एक्सेट्रा are the options. For that we are using aluminum and aluminum alloys. We are using for this material we are using the metal pattern, like for the aluminum and aluminum alloy, steel, cast iron, brass, white metal. ये सारे materials को अगर आपको कास्ट करना है तो ये सारे ऑप्शंस के लिए आप मेटल पैटर्न्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ दी प्लास्टिक। सो प्लास्टिक हैज़ अ एडवांटेज in the form of they are the durable, आप इसको easily handle कर सकते हैं। It's provide a smooth surface, it's provide a moisture resistance. A plastic pattern does not involve any appreciable changes in its size and shapes. तो ये एक बड़ा एडवांटेज यहाँ से निकल के आता है कि प्लास्टिक पैटर्न्स के अंदर जो है वो इसके साइज़ और शेप के अंदर जो है इतना कुछ वेरिएशंस जो है वो ड्यू टू दी एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट जो है वो जनरेट नहीं होता है। इट इज़ ए लाइटर इन द वेट्स, देन इट इज़ अ वियर एंड कोरोजन रेजिस्टेंस, देन इट्स प्रोवाइड अ गुड सरफेस फिनिश, एंड इट इज़ पोजेसेस ए लो सॉलिड श्रिंकेज। तो ये जो है वो श्रिंकेज वाला जो बहुत बड़ा एडवांटेज इस मटेरियल के अंदर जो है वो डेवलप्ड होता है। इट्स प्रोवाइड वेरी लो वियर एंड कोरोजन रेजिस्टेंस, देन इट्स प्रोवाइड अ गुड सरफेस फिनिश, एंड इट्स लो सॉलिड श्रिंकेज। तो ये जो है वो इसके प्राइम एडवांटेजेस के तौर पे आप जो है इसको गिन सकते हैं। देन इट्स हैज़ ए श्रिंक हो जाना ना, मेटल, वुडन, ये सारे
मटेरियल जिसमें से आप पेटेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इस कंडीशंस के अंदर ये एक मैं बोल सकता हूँ कि ये एक प्रॉब्लम जो है ये सारे इसके अंदर जो है वो रहता है. सो प्लास्टिक के अंदर भी थोड़ा श्रिंकेज का, अगर हाई टेम्परेचर्स के अंदर ये पेटेंट अगर काम करती है, राइट, कुछ ऐसी कंडीशंस के अंदर, तब इसके अंदर ऐसा श्रिंकेज का प्रॉब्लम हो सकता है. पर नॉर्मल कंडीशंस के अंदर दे हैव अ वेरी लिटिल लो श्रिंकेज एज कंपेयर टू द other viable options, right? Then it has a limitations in the form of the plastic patent are a fragile, and thus a light section is may need a metal reinforcement. जो एक मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर बताने की कोशिश करूँ तो प्लास्टिक पेटर्न्स जो रहती है ना, वो फ्रेगल्स रहती है, वो ज़्यादा लोड सस्टेनेबल नहीं रहती है. अगर लाइट सेक्शंस जो है उसके लिए आपको कुछ एक रेनफोर्समेंट यानी एक बैकअप मटेरियल्स जैसा एक ऑप्शंस जो है वो आपको लगाना पड़ता है प्लास्टिक पेटर्न के साथ. तो ये एक डिसएडवांटेजेस के फॉर्म्स में यहाँ पे निकल के आता है. ए प्लास्टिक पेटर्न इज मे नॉट वर्क वेल व्हेन subject to a conditions of a severe shock as in the machine molding. So this is also quite a big disadvantage of the plastic material, is that it's not work well when you are subjected to higher shocks, right? अगर इस कंडीशंस के अंदर इस मटेरियल के ऊपर ज़्यादा शॉकिंग लोड्स या फिर फोर्सेस लगते हैं मशीन मोल्डिंग के अंदर, तो ये मटेरियल जो है वो ज़्यादा जो है इसको उस कंडीशंस के अंदर अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाए, या फिर मटेरियल्स को फेलियर होने के चांसेस जो है वो यहाँ पे इस कंडीशंस के अंदर बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट विच इज़ द प्लास्टर. अ प्लास्टर हैज़ एन एडवांटेज इन द फॉर्म इट्स कैन ईजिली टू बी वर्क बाय using a wood working of the tool. Then it has we can manufacturing the intricate shapes to be cast without any difficulties. इसमें किसी भी डिफ़िकल्टी के बिना आप इस मटेरियल को यूज़ करते हुए जो है वो आप इजीली जो है इसमें से इंटीग्रेट शेप्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. इट हैज़ ए हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ which is up to the 285 kg per centimeter square. So the plaster has a great advantage is like that we can work easily with the plasters. We can manufacturing the integrate shapes with using a plasters. Then it has a high compressive strength, right? ये ज़्यादा जो है वो कंप्रेसिव फॉर्म के ऊपर जो है वो सस्टेनेबल कंडीशंस में रहता है. Then as we are discussing as a disadvantage of that, it can easily use for a small castings. ये ज़्यादा तौर पे जो है वो स्मॉल कास्टिंग के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा वायबल ऑप्शंस रहता है, इसको हम लोग ईज़िली यूज़ कर पाते हैं. अ प्लास्टर पेटर्न्स मटेरियल. A plaster pattern is maybe made out of the plaster of Paris or a gypsum cements. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो प्लास्टर से जो भी मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग्स होते हैं, तो आप इसके अंदर देखिए या तो वो पेटर्न्स जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है या फिर जिप्सम सीमेंट जो है यूज़ करके इस पेटर्न को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किया जाता है. इट हैज़ an applications. A plaster is used for a making of a small and intricate patterns. छोटे छोटे और इंटीग्रेट जो शेप्स के अंदर जो है वो कुछ ऐसे डिफ़िकल्टी वाले शेप्स जो रहते हैं, इंटीग्रेट शेप्स जो रहते हैं, उसको बनाने के लिए, छोटी और इंटीग्रेट शेप को बनाने के प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो है वो पैटर्न्स जो है वो ज़्यादा तौर पे बनते हैं. देन कोर बॉक्स जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए जो है वो प्लास्टर जो है वो ज़्यादा वायबल ईजिली इस ऑप्शंस के साथ निकल के आता है. Next pattern and last material for use for the pattern making is the wax. Wax यानी मीन, right? मीन जो हम लोग गुजराती में बोलते हैं ना, मीन जो यूज़ करते हैं, wax. अब wax has an advantage is as that a wax pattern is provide a very good surface finish.
वैक्स का जो पेटेंट रहता है वो बहुत ही अच्छा जो है वो सरफेस फिनिश, क्योंकि स्मूथ रहता है ना। आप जब भी इस चीज़ को किसी भी शेप के अंदर डाल देते हो तो उसका सरफेस फिनिश जो इट लाइक अ वाटर, राइट। वो हमेशा वो शेप को जो है वो एडप्ट कर लाए जिस शेप के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसको ढाला जाता है। सो द वैक्स पेटेंट इज़ प्रोवाइड अ वेरी गुड सरफेस फिनिश। वो बहुत ही अच्छा जो है वो सरफेस फिनिश इस पेटेंट के साथ हमें मिलता है, इस मटेरियल से बनाए हुए पेटेंट के साथ हमें मिलता है। दे हैव इम्पैक्ट हाई एक्यूरेसीज टू द कास्टिंग। इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो हमें ये निकल के देता है कि ये जो हाई एक्यूरेसी जो है इस पेटेंट से, जो भी इस मटेरियल से जो भी पेटेंट जो है वो हम लोग बनाते हैं, तो ये पेटेंट जो है वो हाई एक्यूरेसी के साथ जो है इसका हमें कास्टिंग ऑब्जेक्ट जो है वो मिल पाता है अगर इस वैक्स से अगर बनाए। सो आफ्टर बीइंग अ मोल्डेड, जैसे ही वो मोल्ड होता है, द वैक्स पेटेंट इज़ नॉट टेकन आउट ऑफ द मोल्ड लाइक द अदर पेटेंट्स। जैसे मोल्डिंग हो गया, जैसे मोल्डिंग हमने मोल्डेड कर दिया, तब बाकी सारे पेटेंट कैसे हम लोग उस पेटेंट को मोल्ड में से जो है वो निकाल लेते हैं, राइट। तब ये वैक्स पेटेंट इज़ नॉट टेकन आउट फ्रॉम द मोल्ड लाइक द अदर पेटेंट्स। जैसे बाकी के पेटेंट के कंपैरिजन्स में, जैसे बाकी के सारे पेटेंट्स हम लोग निकाल लेते हैं मोल्ड में से, यहाँ पे वैक्स का जो पेटेंट रहेगा वो हम लोग, जैसे मोल्डिंग प्रोसेस हो गया तो मोल्डिंग प्रोसेस में से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मोल्डिंग वी आर नॉट टेकिंग आउट दैट वैक्स पेटेंट्स, रेदर द मोल्ड इज इन्वर्टेड एंड हीटेड। अब क्या करेंगे, वो मोल्ड को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हीट कर देंगे, यानी वो एक सॉलिडिफाइड हो जाएगा और वैक्स जो है वो पिघल के निकल जाएगा। द मोल्टन वैक्स विच इज़ कम आउट और इट इज़ इवापोरेटेड। जैसे ही हम लोग उसको हीट करेंगे तो काफ़ी सारा जो वैक्स है वो मेल्ट होके बाहर निकल जाएगा वेंट में से, और कुछ परसेंटेज ऑफ द वैक्स विच इज़ टू बी इवापोरेटेड, वो in the form of the vapor that is be evaporated. Thus, there is a no chance of the mold cavity which is getting damaged. इसका सबसे बड़ा जो है वो रहता है, आप इस पूरी मोल्डिंग, जैसे आपने आप मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग करोगे तब सबसे बड़ा दिक्कत यही आता है कि at the time of the taken out of the patents from the mold, there will be a greater chances of the damage of that mold. पर इस कंडीशंस के अगर हमें पेटेंट को मोल्डिंग के बाद जैसे मोल्ड कर दिया उसके बाद बाहर निकालना नहीं है, उस कंडीशंस के अंदर जो है आप इजीली उसको डैमेजिंग से जो है वो बचा सकते हैं and while removing the patent. So this is the biggest advantage of using a wax material for the patent making. This comes with the greater advantage in the manufacturing process of the patents. Now it has an applications in the field of the casting, like a wax patent is find the applications in the investment casting process. जो एक कास्टिंग का प्रोसेस, जैसे सैंड कास्टिंग होता है, मशीन मोल्डिंग कास्टिंग होता है, इस तरीके से जो काफ़ी सारे कास्टिंग प्रोसेसेस होती है, इसी तरीके से एक इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस है। इस इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो वैक्स पेटेंट जो है उसका यूज़ किया जाता है। नाउ द पेटेंट अलाउंसेस, आज का जो अब हमारा मेन जो है वो टॉपिक, अब डिस्कशंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो है हमने डिस्कशंस किया था विच इज़ अबाउट दी पेटेंट अलाउंसेस। जो भी हम अलाउंसेस इस पेटेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, सर्टेन काइंड ऑफ द पेटेंट अलाउंसेस, अगर मैं आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँ तो हम थोड़ा साइज़ के अंदर थोड़ा ज़्यादा साइज़ अलाउंसेस देते, रिलैक्सेशंस देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें कास्टिंग के बाद अगर ऑब्जेक्ट कास्ट होगा तो कुछ मटेरियल जो है वो मशीनिंग में चला जाएगा, तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए जो है वो हम लोग अलाउंसेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो व्हाट इज़ अ पेटेंट अलाउंसेस? इफ़ आई वांट टू डिफाइन दैट, अ पेटेंट इज़ ऑलवेज अ लार्जर इन द साइज एज कंपेयर टू द फाइनल कास्टिंग।
जो हमें फाइनल कास्टिंग जो है वो बनाना है, उससे पेटर्न जो है वो थोड़ा साइज़ में बड़ा रहता है, राइट, बिकॉज इट कैरीज अ सर्टेन अलाउंसेस, क्योंकि उसके ऊपर कुछ जो है अलाउंसेस लगे होते हैं, इसीलिए जो है जो एक्चुअल आपको चाहिए ऑब्जेक्ट के जो डायमेंशंस, उससे कंपेरिजन्स में पेटर्न जो है वो आपका साइज में बड़ा रहता है। अब वेरियस पेटर्न अलाउंसेस आर बिलोज, इस तरीके के पेटर्न अलाउंसेस जो है वो दिए जाते हैं। द फर्स्ट विच इज़ दी श्रिंकेज और द कॉन्ट्रैक्शंस अलाउंसेस, श्रिंकेज यानी कि सिकुड़ जाना और कंट्रैक्ट हो जाना, ये अलाउंसेस पैटर्न के ऊपर दिया जाता है। अगर या वो वुड पैटर्न हो, मेटल हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, प्लास्टिक्स हो या फिर वैक्स हो, इसमें उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए कुछ अलाउंसेस इसको दिए जाते हैं। देन सेकेंड विच इज़ अ मशीनिंग अलाउंसेस और वी कैन से एज अ फिनिश अलाउंसेस। Next, which is a draft or a taper allowances. Next, which is the fourth one, which is a distortions or a camber allowances. Fifth, which is a shake or wrapping allowances. तो ये 5 डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंसेस जो है वो पेटर्न के ऊपर प्रोवाइड होते हैं।